Welcome to this chat show Face to Face. This is a program wherein the Dean is interacting with three students drawn from three different semesters. And we are doing this program as part of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education. DME is one of the most prestigious institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have three schools in DME besides DME Media School. The other two schools are DME Management School and DME Law School. Four academic programs are offered by DME, which include BA JMC, BBA, and then BA LLB and BBA LLB. DME is known for doing all such things which are completely different, which are out of the box. And particularly if I tell you about this pandemic, since the time this COVID-19 struck in March 2020, since that time we have been doing a lot of such things which are to the benefit of the students, be it online classes or the production of the video content for the benefit of the students. Also, the internship is provided online with the help of the teachers to the students. So all these things we have been doing. And if I talk about the basic programs, the flagship programs which are done by us, so right from international conference to international film festivals and all, we continue doing this all. And besides that, we have different kind of series, online series that we have started. So to know more about DME Media School, the DME particularly, the way the DME has been trying to reach out to the students, and this whole process of empowering the students, engaging the students, all these efforts are being done continuously. To know more all about this, let us have a look at this video. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons, and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong, and resilient for any times to come. We empower the students
All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions, and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents, and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. Welcome back to Face to Face. So as I was telling you something about DME Media School, to tell you something more, DME Media School is one of the most promising media institutes in the country, in the sense that the kind of activities that we do and the flagship programs, particularly, I would like to elaborate further on that. We have this international conference ICANN, which we have been conducting continuously for 4 consecutive years. Similarly, another international event, that is International Film Festival, Cinesta International Film Festival, CIFI, is entering into 3rd year in the month of December this year. And we have been continuing with these activities despite being under pandemic and despite the fact that things are not possible to conduct in the physical space, but we have been conducting these activities in online mode. And during this COVID-19, even the other activities like this Media Fest, which from this year we have converted into a media convention, Vritika. It is entering into 5th year. Earlier, it was in a different mode, but 2 years back, we started it as a media festival, and this year we converted it into a media convention, and this is entering 5th year. Last year also we conducted it in the online mode, and this year also we are conducting it online mode, but we are trying to expand it to the whole of the country. And as part of this, we also provide this Ganesh Shankar Vidyarthi Award to young journalists who have made a mark in their respective areas. And this BG Varghese lecture series is on for the last 6 years or so. And in this series, every month we invite distinguished people to come to the DME when it was open, but now it's in the online mode, talking to the students on different aspects of journalism and media. And talking about this particular program, Face to Face, we designed this program last year at a time when this pandemic had already struck. Things were not in a good shape, and students were facing a lot of problems. Even teachers were in trouble for various reasons and all. So it was thought that there can be something online which can build a trust between the students and the parents, between the students and the college, and between students and the teachers, between the college and the parents. So with these multiple objectives, we started this program. So it was designed completely. It was a chat show. It is a chat show, and continuing some program is not an easy task, but we were firm that we will continue with this program, and that is how this 2nd season is happening this year. And we hope that many more seasons are bound to come in the coming years. So in this face-to-face program, as I was telling you already, there are 3 students who are there from 3 different years. So in this, there are students from 2018 batch, from 2019 batch, and 2020 batch. So before moving further, let us know who all these students are there in today's episode.
Welcome back again to Face to Face. So obviously all of those who are present in this session have made out already who all these three students are there. So to name them, we have Aradhna Jayendran with us, who is from 2018 batch. Then we have Medha Singh with us, who is from 2019 batch, and Munna Safi, who is from 2020 batch. So welcome everybody on board in today's program. And as it has been customary for us, we start the program with the senior most person. So to start talking to Aradhna first. So Yes, Aradhna, so we all have been under the influence of this pandemic COVID-19 for almost 1.5 years. And in your batch also almost 3 semesters have been affected by this. And during this period, everybody has suffered in various ways. The students, as a student, you and your classmates also would have suffered because there were no regular classes in the physical mode, and things were not happening the way they are expected to happen. At the family front also, many of us have faced either we were under the infection of COVID-19, or our family members were there, or the people who are near to us or dear to us, they were under influence, and the education was also affected. Some people have looked at this pandemic as an opportunity, whereas others feel that it was a disaster and it was something which was completely unexpected and which has harmed the lives of the people. How do you look at the pandemic, and what kind of effect have you been facing because of this pandemic? Aradhna. sir, I have been on a neutral side. Like on a career front, I have looked it as a good thing that pandemic happened and I got time to think about what I want to exactly do. But on a financial side, yes, there were issues. Like income was not less, cut was there. But otherwise, it was a positive thing. Of course, on a pandemic base, it was negative because people were dying. Negativity was there. You were not getting allowed to go out of the home. But on a career front, as I said, like I got time to understand myself better, and I got time to like think about what exactly, like right now I am working, but I have a plan to go to UK next year. I have already applied. I've already got the admission. It's just that 6th semester results are awaiting. So yes, sir. Well, but then, if the pandemic has affected you, as you said, so you said financially. So how did it affect you financially? So financially, as in my parents both are working. So for like 6 to 7 months, they weren't working, like was work from home. So the salary they got was half. Hmm. It was suddenly a draft. So Yeah. that way, yes, financially. Then this year, when the second wave hit, 3 of us were infected, and my father was critical, a bit critical. I was critical. So in that way, yes, financially we were in a bit urge. But now we are fine, touch wood to God. Like God's case, we are all good right now. I am working, my parents are working. So So everything is fine. how did you manage those situations? As you said that your father was critical, you were critical. How did you manage those conditions? I think my mom is the only person who stood strong, and she was like, I'll do it. Nothing will happen to you both. Everything will be fine. Because all of a sudden it was just, everything was coming crashing down. Like we didn't know what to do. Hospital beds weren't available. Then thankfully my sister was in medical field. So she had some contacts and we got admitted then. I didn't got admitted, my father got admitted. So in that way. So my mother was very strong. And the teachers were supporting. I remember I called Manmeet ma'am saying that, ma'am, aise sab kuch hua hai. And she was like, it's okay, take your time, adjust everything, and then tell me if you need anything. Okay. So now what is the current response to this pandemic? Meaning thereby, have you got your vaccination and all? How will you fight First the pandemic? dose I have got, my parents have got both the doses. I've got first only. Okay, so I'll be getting next week my second dose. okay, okay.
Moving on to Medha. Medha, I will put the same question to you. How do you look at the pandemic? Was it an opportunity to you, or is it disaster? And whether it affected you or your family members, and if yes, how did you handle those situations? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. अगर मैं बात करूं पेंडेमिक की, तो फर्स्ट वेव जब आया तो ऐसा लगा कि अरे छुट्टी हो गया, चलो बहुत अच्छा है, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे पता लगा कि अरे ये तो एक्सटेंड ही होते जा रहा है, तो फिर बहुत बोरिंग सा लगने लगा। फिर मेरे फैमिली में, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स बिहार में रहते हैं, तो ऐसा हुआ कि मेरी मदर अफेक्ट हो गई। तो फिर उनका यहाँ से टेक केयर करना कि मम्मा कैसी हो, वो चीजें। फिर उसके बाद सर वो फर्स्ट वेव तो चला गया, सेकेंड वेव इतना भयानक था कि उसको लेके तो मतलब दिमाग बहुत ही ज्यादा अपसेट होने लगा कि सर कैसे हैंडल करेंगे। फिर मैं दिल्ली में रह रही थी, तो पेरेंट्स ज्यादा परेशान, निकलो, और हम बच्चे तो हम सोचते थे अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए निकल सकते हैं। तो फिर उसमें सर पता नहीं, फिर मैं अफेक्ट हो गई, मेरी बहन यहाँ पे अफेक्ट हो गई। तो पेरेंट्स का ऐसा था कि वो दूर है, तो उनको ऐसा लगता था कि कैसे फिर मैनेज करेंगे, बिकॉज मैं भी अफेक्ट थी, मेरी सिस्टर भी अफेक्ट थी। तो हम लोगों ने कोविड को ऐसे बैटल किया कि वो मेरे लिए खाना बनाती थी, मैं उसके लिए बनाती थी। बिकॉज ऐसा था कि मुझे खाने का मन नहीं होता, कोविड का सेम सिचुएशन, किसी को खाने का मन नहीं हो, और खाना खाना इम्पोर्टेंट है। तो सर हम दोनों ने मिलके बैटल पूरा ये किया कि नहीं, हम फाइट कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा बीच में फील हुआ कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, तो मुझे एडमिट भी होना पड़ा। पैनिक की वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे कि पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं, मेरे तो करियर ही स्पॉइल हो जाएंगे, मैं तो कुछ देख भी नहीं पाई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे, तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ा। फिर वहां पे डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया, 2 दिन के अंदर मैं ठीक हो गई पूरी की पूरी। फिर मैं घर आ गई, फिर यहाँ पे क्वारंटीन अच्छे से किया। फिर सर ऐसे ही उसके बाद सर अगर अपॉर्चुनिटी की तरह बोलूँ, तो फर्स्ट वाला मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। फर्स्ट वेव में मैंने बहुत चीजें की, मंडाला आर्ट सीखा, डूडल किया कुछ ऐसे। फिर जो भी चीज जो मैं नहीं कर पा रही थी, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, मैं बहुत पढ़ाई में फोकस थी, तो वो चीजें मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इस पेंडेमिक में सब कुछ किया जो मैं करना चाहती थी। बाकी सेकंड में मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी तो फिर ऐसा था कि जब एग्जाम्स आने वाले थे तभी मुझे कोविड हुआ। तो टीचर्स इतने अच्छे थे कि मैंने सबको बोला, सारे टीचर्स को बोला कि सर मैं कैसे करूंगी, मेरे असाइनमेंट नहीं बने हैं, मैं एग्जाम कैसे दूंगी। उस टाइम में मेरा स्टार्ट हुआ था, तो सर ने बोला कोई नहीं मेधा, तुम अच्छे से कर लोगी, तुम बस अभी ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारा मैं सेपरेट एग्जाम लूंगा। तो बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और पॉजिटिविटी ही देख के चलना चाहिए, नेगेटिव को भूल जाना चाहिए। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव ही था। तो तुम्हारे क्लास में मेंटर्स कौन है, किन टीचर्स ने तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखा? सर मोहित सर स्पेशली बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो हमेशा बोलते थे बेटा पहले डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं जो भी करना है मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा, फिर तुम एग्जाम देना, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद। मनस्वी मैम थी, हमारा PR का सब्जेक्ट था, मनस्वी मैम थी। फिर श्रुति मैम थी, शुक्ति मैम थी। सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और सबने बोला कि ठीक हो जाओ, फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर अच्छे से करेंगे। तुमने कहा कि तुमने पहली वाली पेंडेमिक में पिछले साल समय को काफी यूज किया एज एन अपॉर्चुनिटी, और तुमने क्या बताया, मंडाला किया और डूडल किया। तो व्हाट ऑल इज दिस अबाउट, एंड कैन यू एक्सप्लेन थिंक कि आप ऐसे बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो कुछ ऐसे कर दिया, पेंट मतलब कुछ भी ऐसे स्केच बना दिया, दैट इज कॉल्ड डूडलिंग। अगर आप डूडलिंग में बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, आप कहीं भी कुछ भी पेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड डूडलिंग। तो वो मैंने किया, कहीं भी कुछ भी स्केचिंग करके, दीवार पे पेंट करके, कुछ भी ऐसा किया। तो जिस तरह से ये गूगल पे आता है डूडल्स, इट्स द सेम थिंग। यस सर, डूडल आर्ट। और सर मंडाला आर्ट की बात करूँ, तो मंडाला एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मैजिक सर्कल। वो सब कुछ सर्कल मैथमेटिक्स से डिपेंडेंट होता है। आप सर्कल में बनाते हो, उसके अंदर आर्ट करते हो, लाइनिंग करते हो, तो दैट इज कॉल्ड मंडाला आर्ट। ओके, तो वो किया। चलो चीज है, ठीक है। डूडल मैं जानता था, मंडाला तो मुझे भी नई चीज मिली। अच्छा, ये तुमने बताया। सर मंडाला आर्ट की मेरे पास बुक्स भी है, और मैंने करा भी था,
चलो starting अभी with- अभी मेधा, इसको हम अगले सेगमेंट में देखते हैं तुमने क्या Yes, क्या sir. बनाया है। Yes. Abhi, we move on to Munna. Munna, I will put the same question to you. You have already listened about the pandemic. How do you define, sir. how do you react to this kind of situation? Yeah, Munna. सर मैंने अपॉर्चुनिटी का लिया है, मतलब मुझे टाइम मिला, काफी चीज एक्सप्लोर करी। मुझे सॉफ्टवेयर, मतलब कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे कभी इधर जा रहे हैं, कभी क्लास बंक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कैफे, टाइम ही नहीं मिल पाता जो मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। अब घर पे थे तो घर पे कुछ ना कुछ मन भर रहा, अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, चाहे सॉफ्टवेयर सीखो चाहे कुछ। मुन्ना, तुमने बताया कि अगर कॉलेज में है तो फिर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं। तुम तो अभी तक कॉलेज में आए ही नहीं हो, तुम्हारे बैच का तो कोई भी क्लास नहीं हुआ है फिजिकल बोर्ड में। नहीं सर, ऐसे होता 2019 में जब जामिया में था तो मैं वहाँ पर बच्चे करते थे, तो मुझे पता है कि ऐसा कॉलेज के अंदर होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते नहीं है कॉलेज में, तो घर पे तो अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। नहीं, लेकिन तो घर पे तो करना ही पड़ता था। लेकिन डीएमयू मीडिया स्कूल में तो सब लोग पढ़ाई करते हैं, मैंने तो किसी को बंक करते देखा नहीं क्लासेस। और तो सर मैंने एनवायरनमेंट जाकर देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, काफी कुछ एक्सप्लोर करा, काफी कुछ सीखा, सॉफ्टवेयर सारे सीखे एडोबी के, और तो मुझे इस बात की तस्दीक कर सकते हो आराधना, क्योंकि मेरे कमेंट पे हंस रही थी कि यहाँ पे क्लासेस लोग बंक नहीं करते हैं। ठीक है ना आराधना, सही कहा ना मैंने? सर बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं कॉलेज मिस करती हूँ, मैं बोलूंगी अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, मैं टीचर्स को मिस करती हूँ, मैं क्लासरूम मिस नहीं करती। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन क्लासेस थी, दिमाग ही पता नहीं था क्या हो रहा है। भाई बुला लो, बस क्लास में बुला लो, बिठा लो, मैं बैठ जाऊंगी, मैं नहीं बंक करूंगी, रोज कॉलेज आऊंगी। अच्छा, कॉलेज आके बंक करना अच्छा लगता है ना? घर बैठ के बंक करने में क्या मजा आता है? मजा नहीं आता। कॉलेज आओ फिर बंक करो, मूवीज निकल रही है, जा रहे सब साथ में जा रहे एक साथ। लेकिन मेधा के साथ ऐसा नहीं है। मेधा चाहे फिजिकल मोड हो और ऑनलाइन हो, शी इज ऑलवेज देयर इन द क्लास, isn't it? Yes sir, yes sir, 95% attendance. Yes, so we have such kind of students also, Munna. ठीक है, तो 95% वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली तुम भी उसी तरह के स्टूडेंट हो, वी नो दैट। हाँ, तो गो अहेड, तुमको मैंने रोक दिया बीच में, तुम पेंडेमिक के बारे में बता रहे थे। हाँ सर, पेंडेमिक में सर काफी कुछ एक्सप्लोर करा था मैंने। तो सॉफ्टवेयर जो मैंने काफी दिक्कत हो रही थी, मैंने टीचर्स को बताया था, जो भी हमारे टीचर्स है, कृतिका मैम की स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस करनी चालू कर दी, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट कर दिए, तो काफी कुछ सीखा, एडोबी कैरेक्टर वगैरह जो नहीं सीखने थे वो भी सीख लिया मैंने पेंडेमिक के अंदर। प्रोनाउंसिएशन मेरी काफी खराब थी, तो मैं टीचर्स, मुझे कामिल सर, सुकृति मैम, टीना मैम ने काफी मुझे बोला है प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, तो काफी मैंने इस पे मेहनत करी। डिक्शनरी लाया ऑक्सफोर्ड की, तो वो पढ़ी, तो वो सब मैंने ठीक कर लिया। पेंडेमिक में काफी मुझे वो हुआ है, शायद अगर मैं कॉलेज रेगुलर होता तो मेरा एक 0 लेवल का बेस होता, लेकिन नहीं, पेंडेमिक में मैंने काफी खुद को डेवलप कर लिया, काफी कुछ सुधार लिया खुद में। मेरे के लिए तो अपॉर्चुनिटी है एक बहुत बड़ी। और पर्सनल लेवल पे या फैमिली के लेवल पे तुम्हें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ी पेंडेमिक में? नो सर, मेरे सब माशाल्लाह सही था, बस फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और बाकी सब ओके था। चलो, सब घर पे ही थे, कोई कहीं जाता नहीं था। चलो, अच्छी बात है। अगर वी विश कि हो, हालांकि हम सबको पता है कि सेकेंड वेव कितनी डिजास्टर थी सभी के लिए, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, लेकिन अब हम उससे निकल गए हैं। और आई ऑलवेज एग्री विद यू ऑल दैट वी हैव टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, जहां पर हमें एडवर्सिटी में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। सो मूविंग ऑन अगेन टू आराधना। आराधना, सिंस दिस एजुकेशन हैज टर्न फ्रॉम फिजिकल mode to the online mode, and I believe you would have been in the 4th semester when all this happened, and then 5th had gone that way, 6th had gone that way, and you are almost out from the college now because your session has completed. But then how did you make a comparison, if I ask you to do that, between the online classes and the offline classes? What kind of classes you feel are or were more beneficial to the students? Sir, definitely like online offline classes. तो वहां आके तुम जो टीचर्स बोल रहे सुन रहे हो, समझ आ रहे, नहीं समझ आ रहा पूछ रहे हो, कभी भी जा सकते हो टीचर्स के पास, मैम ये बता दो। ऑनलाइन ऐसा होता था कि
सबको पूछना है, सबको टाइम नहीं मिल रहा है। एक पीरियड ऑफ टाइम का क्लास होता था, उतने में खत्म, उसका हम टीचर्स को देखते थे नेक्स्ट क्लास में, और मैम सिर्फ पढ़ाती थी उसमें। तो डाउट वाला पार्ट था कि टाइम नहीं मिलता था, पर ऑफलाइन ज्यादा ही बेटर था। एटलीस्ट जा रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, प्रैक्टिकली तुम देख रहे हो। जैसे कि अभी उसने मुझे फर्स्ट ईयर में, मुन्ना ही सेड फर्स्ट ईयर में है, एक हमने सब वीडियो वगैरह, हमने योगेश सर ने हमें लैब में दिखाया, हम गए, सर ने बताया कि ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। उन लोगों को भी पता भी नहीं होगा कि ऐसे यूज करते हैं। बेसिकली तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर, लाइक वे टू बेटर. But then online classes, whether you have been attending regularly the classes, or like many other students, as I have experienced, many students do it, they log in and then they vanish, and the teachers do not know whether the students are there in the class or attending the classes, or what is your mode of attending online classes? स्टार्टिंग में सर ऐसा होता था कि ऑन करके छोड़ो, सो जाओ, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब एंड आता है ना कि यार स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, भाई पढ़ लो वरना कहीं नहीं पहुंचोगे, देन यू वर लाइक आई वाज अटेंडिंग। और जब अटेंड नहीं होता था तो कॉल करते थे, प्रियंका, कौशिक, तो प्लीज बता दो क्या हुआ, करना है, असाइनमेंट्स करने वरना मार्क्स भी मिलेंगे। तो तब था कि अटेंड करना स्टार्ट हो गया था। तब स्टार्ट हुआ था कोविड, तब नहीं अटेंड करती थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ भी। नहीं, लेकिन तुम गलत सिग्नल दे रही हो अपने जूनियर्स के लिए। हमारे जो नहीं गाइस, यू विल, मुन्ना के बैच के पूछो, ये लोग तो सारे क्लास में होते हैं हमेशा। इट्स गुड यार, यू आर गोना मिस इट, पता है, सच्ची बता रही हूँ एक्सपीरियंस से। तुम वहां पे हो ना, मैं जो वहां पे थी, मैं ऐसी थी बस खत्म हो जाए, यहाँ से निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली ये होता है, जब हमको कुछ मिल जाता है तो हम हमें वो चाहिए नहीं होता, कीमत नहीं समझ, चाहिए था। कीमत नहीं समझते जब कोई चीज मिलती है, और जब नहीं मिलती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। अभी नौकरी लग गई है, लाइक सुबह उठो, जाओ, आओ, सो जाओ, रूटीन यही है और कुछ नहीं है। वेयर आर यू कॉलेज में, वेयर आर वर्किंग? सर लेजिस्टिफाई सर्विसेज, नोएडा सेक्टर 1. Okay, so moving on to Medha. Medha, if I ask the same question, if I ask you to make a comparison between online classes and the offline classes, you have experience of both. Which one you like more and why? सर दोनों ही अपने जगह पे अच्छी है, बिकॉज दोनों एक्सपीरियंस है। मैंने हाफ ऑनलाइन किया है, हाफ ऑफलाइन भी किया है, तो सर दोनों ही एक्सपीरियंस है। और सर अगर बात करूँ कि ऑफलाइन हम कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिकली चल रहा था, प्रैक्टिकली भी हम अटेंड कर रहे थे, थियोरिटिकली भी हम कर रहे थे, बट ऑनलाइन में सर ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टीज था कि आपके प्रैक्टिकली, मतलब ऐसा डिफिकल्टीज सोच रहे थे कि मतलब प्रैक्टिकल का कैसे करेंगे, कैमरा का पार्ट आएगा तो कैसे करेंगे। बट सर ने जिस तरीके से समझाया, जिस तरीके से बताया, मतलब मोहित सर और सुमंत्रा सर ने पूरा क्लास को लाइव करके दिखाया है हमें, तो वो चीजें पूरा समझ में आया है। बट वही है कि अभी थोड़ा है कि अभी कैमरा फिर देखना पड़ेगा, फिर उसको मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी था, ऑफलाइन भी, ऐसा फिर दोबारा कभी भी नहीं होगा। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑनलाइन कभी नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए एक्सपीरियंस ही था कि हमने ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस किया, ऑफलाइन भी। हम इसके जैसे डार्विन ने सर कहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अगर हम निगेटिवली सोच ले कि अरे ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है, हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तभी जाएंगे, तब से स्टार्ट करेंगे, तो सर हम बहुत पीछे हो जाएंगे कि तब से स्टार्ट करना होगा। बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमारे बैच में भी कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो हम सीरियस हो जाएंगे, हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन है अभी कुछ नहीं है, चलो हो जा रहा है, सब कुछ सही है। बट ऐसा नहीं है सर, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये पीछे छूट जाएगा। तो मेरा सर दोनों का एक्सपीरियंस इक्वली इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर जैसा कि हम सभी को मालूम है, अगर थर्ड वेव नहीं आया तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी तुम लोगों के फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आई डोंट यूज द एक्सप्रेशन ऑफलाइन बिकॉज दैट वाज द कन्वेंशनल सिस्टम व्हिच वाज ऑलरेडी देयर। ऑनलाइन हैज कम नाउ, सो दैट इज इन द फिजिकल स्पेस, और द फेस टू फेस एजुकेशन was there, so that again will come. So I mean, one thing I must tell you, that online is not going to vanish. All online will remain there along with the physical classes, and there will be a blending of the two, because the whole world, not only DME, the whole world has experienced online.
the classes, and there are things which are beyond the classes. Like this is a session that we are doing. This is not part of the curriculum, but we are able to do this kind of program because of online. So online has its own benefits, and once the world has experienced the benefits of online, so nobody is going to dump the online. But obviously the classes will be in the physical space, and a lot of other activities will continue, may continue. Nobody knows what exactly will happen, but it are expected to continue online, and that blending will be a new normal very soon, we believe. And since DME is planning to open the college, given the condition as we have put it, that the students must have their both doses of vaccination. So what is your status? Have you got both the doses? Sir, I have got one dose, first dose. Okay. So And the second yes. one, when? Sir, will you after get it? 3 months, I will Oh. got the second dose. So you got delayed in getting it done? Yes, sir, because I was affected by corona in August, na. So after 3 Mhm. months, doctor has said ki after 3 months you got second dose or third dose. Yeah, that's true. Okay, so moving on to Munna. Munna, what will you say online versus physical mode? Because yours is a batch which has been in online right from the beginning. You must be attending your classes in the physical mode while you were in a school. But once you have joined the DME, and your joining was also quite late in 2020 because the whole admission process got delayed. But then despite that adverse thing, the university has done one good thing. They have planned everything in a manner that you are now in the third semester, and hopefully you will complete your third semester in December. So that loss will not be there. You will not be losing any time period. In fact, in the normal mode also, you would have been appearing in the third semester in the month of December. But then you are deprived of attending classes in the physical mode, and also you are deprived of enjoying the campus life, which any youngsters look for after completing the 12th standard. So what is your experience, and how do you make a distinction between the two? सर सेमेस्टर तो हमारा काफी लेट चालू हुआ था, 6 महीने का हमें टाइम मिला था और काफी परेशानी तो हुई थी, लेकिन बट स्टिल क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया ही गुजरती थी, इससे हम नहीं छोड़ने हैं। तो काफी परेशानी हुई थी, लेकिन हम टीचर्स से बार-बार पूछते थे, फोन करते थे, रात को भी कर देते थे कभी-कभी, तो काफी परेशानी हुई थी, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। लेकिन वक्त मिला था, वक्त काफी मिला, जो फालतू का वक्त होता था हमारा, जो जैसे मैंने बताया कॉलेज अगर नॉर्मल होता, अभी हम कॉलेज जाते 8:30 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे निकलने के बाद 9 बजे कॉलेज पहुंचते, उसके बाद 2 बजे छुट्टी होती, 3-4 बजे घर आते, फिर वहाँ रेस्ट करते, खाना खाते, 8 बज जाते, 9, 10, 11 बजे बच्चे सो जाते हैं, टाइम ही नहीं बचा, क्या पढ़ेगा वो। अब क्या हुआ, 2 बजे क्लास खत्म हुई। कितने बजे सोते हो मुन्ना, तुम कितने बजे बताया? सर मैं तो अभी फिलहाल 3, 4, 2 बजे जैसे अभी तो 9, 10, 11 बजे बता रहे थे बच्चे सो जाते हैं। नॉर्मल पीरियड में सर, नॉर्मल पीरियड में नॉर्मल 9, 10 बजे सो जाते हैं। एक जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट, अच्छा इंटेलिजेंट लोग जल्दी सोते हैं, बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोता। नहीं, इंटेलिजेंट लोग जल्दी सोते हैं। कौन सा? तुमने कहा ना इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट लोग जल्दी सोते हैं। इंटेलिजेंट लोग जल्दी सोते हैं, लेकिन काफी अपन को तो काफी एक्सप्लोर करना था, तो इस चक्कर में सोना वोना रह गया। क्योंकि मेरा भाई है छोटा वाला, वो खुद सो जाता है, क्योंकि सीए कर रहा है वो, तो वो इतने जल्दी सो जाता है, इस चक्कर में देखकर बोल रहा हूँ। तो सर काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वक्त टाइम तो कम था, लेकिन हो गया था जैसे भी होना था। लेकिन प्रैक्टिकल्स में, जैसे कि मेधा भी बता रही थी या आराधना भी, प्रैक्टिकल्स में तुम्हें थोड़ी दिक्कत आई होगी ना पिछले सेमेस्टर्स में? प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आई थी, कैमरे। तो कैसे तुमने, हाउ डिड यू मैनेज? हाँ सर यूट्यूब पे टीचर्स प्रैक्टिस करी थी। कहाँ तक सही होगा? टीचर्स ने तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में किस तरह से मदद की? ट्यूटोरियल सर, जो कुछ समझ में नहीं आता था तो मोहित सर से बोल दिया, तो वो ट्यूटोरियल भेज देते थे ऑफिशियल ग्रुप में, तो वहां से देख लेते थे, फिर प्रैक्टिस करते, कैसे नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, कितनी बार नहीं आएगा, आ ही जाता था लास्ट में जाके। फिर कैमरे में दिक्कत हुई थी, फिर आपसे मेरी बात हुई थी, आपको अप्रोच करा था मैंने, तो आपने योगेश सर है उनसे मिलवाया था,
तो कैमरे का फंडा सॉल्व हो गया। अभी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लाइटिंग में वो भी हो ही जाएगा, कॉलेज बोल रहे हैं आप खुलेंगे ही तो। तुमने तुमने वैक्सीन की डोजेस ले ली हैं? हाँ सर, लिए अभी लिए मैंने, एक फर्स्ट डोज लिया, अब नवंबर में है, 3 महीने का टाइम है मेरा भी। Okay, so moving on to Aradhana again. Aradhana, if I ask you about your activities, your interests, your inclinations, your passion, your hobbies, besides study or beyond study, what are the curricular or the co-curricular or the extracurricular activities you have been having either within the college, because DME is known for its societies. So you might be participating in this society or that society, any such activities, or you may be very active otherwise also. So what are your hobbies and your passions and all? What will you tell us? So when I was in first year, मैंने photography society join किया था, but फिर due to some reason मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने वो passion नहीं छोड़ा। मुझे याद है मैंने DME MUN हुआ था law batch का, उसमें पार्ट लिया था photography में। इनफैक्ट आई कैन में भी मैं उसमें थी, कृतिका मैम के ग्रुप में थी फॉर मैनेजिंग एंड एवरीथिंग। उस टाइम भी जब टाइम मिलता था मैं जाती थी फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो था कॉलेज में। वरना फिर लॉकडाउन में था वो बेकिंग का शौक जो सबको चढ़ा था, केक बनाना है दिन में एटलीस्ट एक। किस चीज का शौक था? बेकिंग का। ओके। कि एक केक तो बनाना ही है, तो वो था। अलावा ट्रैवलिंग, जैसे कि अभी हम लोग रिसेंटली लाइक फेयरवेल से पहले मेरी जो बैच के हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग बाहर गए थे अपना लास्ट ट्रिप एंजॉय करने के लिए साथ में, को सेकेंड वेव से पहले। दैट वाज फन। तो ट्रैवलिंग इज समथिंग आई रियली एंजॉय। तो तुम लोग ऐसे ही ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हो बिना किसी से पूछे? कैसे गए थे? पेरेंट्स से परमिशन ली, सबने डिसाइड करा कि सबका लास्ट ईयर है, ये फेयरवेल हो जाएगा, फिर सबको अलग अलग डायरेक्शंस में जाना है अपने अपने। नहीं तो कब गए थे ये? जब मार्च 2020 में पेंडेमिक से पहले कि अभी गए? नहीं, अभी इस साल। तो इस साल तो कब गए? फरवरी। अच्छा, तुम्हें मालूम था कि सेकंड वेव आने वाली है, उससे पहले निकल बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन वी वर वेरी लकी, हम उस सेकंड वेव से पहले वापस आ गए और सब सही सलामत थे। So what are your hobbies? I mean, in the sense, do you write something? Do you read something? Do you create something? I read books. I love reading books. Okay, what kind of books you read? I like fictional books, non-fictional, fictional books. Currently, I actually read a book on mental health. Like, क्योंकि I personally thought that कि काफी disturbing हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि second wave आ गया, घर वाले तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब, करियर का नहीं पता कि अभी कहाँ जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा था, एक साल स्किप करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जॉब का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। तो मैं ऐसे सेशंस लेती थी, मैक्स हॉस्पिटल जाती थी मैं, आई टेक टॉकिंग सेशन विद डॉक्टर्स। तो तब उन्होंने सजेस्ट करा कि रीड दिस बुक्स, तो तब मैं वो रीड करती थी, उनसे बात करती थी। इसलिए मेधा ने बोला पैनिक अटैक, मेरे को पैनिक अटैक टचवुड वहां तक नहीं आया, बट ऐसा था कि पता नहीं था क्या करना है, विदाउट एनी मोटिव्स सुबह उठ रहे हैं हम, वो वाला टाइम था। एक था कुछ कोविड के बाद कुछ 1-2 मंथ्स वैसा टाइम था, विदाउट एनी मोटिव आई एम वेकिंग अप एंड आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, लेकिन जो मेधा ने बताया, व्हाट आई कुड मेक आउट इज कि वो बड़ा स्पोर्टिंगली वाला पैनिक अटैक था, वो कोई ऐसा प्रेशर वाला पैनिक अटैक नहीं, प्रेशर नहीं था, बट वही ना, वो उसको भी नहीं पता, उसके पेरेंट्स भी हार में थे, शी वाज कंफ्यूज। यहाँ पे पेरेंट्स सामने, दे सफरिंग, आई एम सफरिंग, नहीं पता करना क्या है, बाहर नहीं जा सकते, घर पे रहा नहीं जा रहा है, एकदम अंदर से घुटन सी हो रही है। तो काफी Okay, so which is your favorite book if you read, or who is your favorite author? Right now, sir, I'm reading Unhappiness. It is a Shaheen Bhatt book. So right now I'm reading that. Ikigai read करी थी मैंने कोविड में. It is a Japanese code for happiness and living happiness. वो read करा था. So do you write on any platform? No, sir. No, I don't write. I did the blogging part for Kritika ma'am's class, and that was very interesting. मेरा टॉपिक ही कुकिंग था, उसमें उस टाइम लिखा था और काफी अच्छा लगा, लिखे लगा कि हाँ तुम कर सकते हो ये, पर उसको मैंने कंटिन्यू नहीं करा कहीं।
my bad maybe. So moving on to Medha, you were already telling us that you were doing the doodling art and all. So, but then besides that, that included, what all you can tell us about all your passions and hobbies? सर मुझे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब साइंस बैकग्राउंड से आके मुझे पता नहीं था कि कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चीजें करते हैं, बस पढ़ाई का पता था कि हाँ मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छा करना है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये चीजें भी है जो मैं कर सकती हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कैमरा में मुझे इंटरेस्ट आया, बहुत इंटरेस्ट आया। फिर मैंने सीखा कि कैसे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, कैसे फ्रेम बनाना है, कैसे चीजें, मतलब आप कैमरा से भी कुछ स्टोरी बता रहे हो, तो वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पैसिनेट किया। तो वो चीजें मैंने अभी कंटिन्यू किया है। तो मैंने, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी, पहले मुझे ऐसा होता था लोग देख रहे हैं मैं पिक्चर नहीं क्लिक कर सकती हूँ, बट अभी ऐसा है कि ठीक है वो देख रहे हैं, मैं उससे परमिशन ले लूंगी, बट मैं क्लिक करूंगी, मुझे अच्छा लगता है क्लिक करना। तो मैं अपना कलेक्शन बनाऊंगी, कुछ चीजें क्लिक करूंगी, जैसे कि मैं स्ट्रीट पे गई तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनकी पिक्चर्स क्लिक करी मैंने, तो वो चीजें मुझे अच्छा लगता है वो चीजें करना। So have you developed any such interest in a particular stream of photography, or I mean, Yes, sir. or you're doing it in general? सर आई एम डूइंग इट जनरल, बट ऑफ कोर्स आई स्पेसिफाई, जब मैं आगे बढ़ूंगी मुझे चीजें और समझ में आएगी, मुझे करियर का पता लगेगा कि हाँ मैं चीजें, और मुझे सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है क्रिएटिव वर्ल्ड में, मुझे इंटरेस्ट है कहानी को कैसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, नॉट फोटो से रिप्रेजेंट करना, नॉट अब वीडियो कंटेंट बना के, आप कुछ भी ऐसे, अभी सर ट्रेंड में है कि आप छोटी छोटी पिक्चर्स को लेके और उसको वीडियो बना दो, तो वो चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो उसको भी करने का है अभी। मतलब अभी तो सर हमारा कोर्स इतना ज्यादा डाइवर्स है कि आप चीजें अभी समझ ही रहे हो कि क्या चीजें, अरे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पीआर कर रहे हो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिसर्च में मैं अभी आई तो मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। जैसे कि दीदी ने बताया कि उनको ब्लॉग्स, मुझे भी ब्लॉग्स वाला अभी पार्ट सुन के बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने अब ब्लॉग्स लेना स्टार्ट किया कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं ब्लॉग लिखूंगी नहीं, बिकॉज मैंने न्यूज़लेटर के लिए भी काम किया है, तो रिपोर्टिंग का मुझे आइडिया हो गया है मैं कैसे रिपोर्टिंग कर सकती हूँ, और ब्लॉग काइंड ऑफ वही कंटेंट आपको लिखना है, बट मैंने अब व्लॉग के लिए देखा है कि मैं व्लॉग कैसे लिखूंगी, तो वो चीजें मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर मैं तुम न्यूज़लेटर टीम में रही हो, तो तुमने क्या किया है, एंड यू आर स्टिल देयर? यस सर, आई एम स्टिल देयर। मैंने रिपोर्टिंग करी है आईकैन के लिए, तो अभी तक तो आईकैन के लिए ही किया है, बाकी स्पेसिफिकली जो भी काम होता है मैम जो देती है हमें वो करते हैं, बिकॉज उसमें मजा आता है काम करने में। मैम इतने प्यार से बताती है कि आप ये कर लो वो कर लो, और समझाती है, हमें बताती है कि नहीं अगर ये गलत हो रहा है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, और अपना रिपोर्ट आप देखो कि करेक्ट एडिटेड रिपोर्ट आपको क्या मिल रहा है, आप उससे जज करो कि आप कैसा कर रहे हो, आपको और कैसा करना चाहिए, तो वो चीजें मुझे बहुत what do you feel about this whole exercise, the way the newsletter is taken out by DME Media School? Because I believe you must be knowing, but not everybody must be knowing, so I can tell you this, that newsletter is such an exercise in DME Media School which is completely unique and unparalleled, in the sense that we take out fortnightly newsletter. That too, it ranges from 12 pages to even 32 pages, 36 pages, which no other institution, media or otherwise, no other institution in this country do. So what is your outlook with regard to this newsletter exercise? सर न्यूज़लेटर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हमने डिजाइन पढ़ा, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो था ही नहीं, तो हमें ऐसा था कि डिजाइन को फिर कंटिन्यू करना बहुत वो है कि आप अगला काम कर रहे हो, आपको असाइनमेंट मिल रहे तो वो कंप्लीट करो, बट न्यूज़लेटर के साथ साथ हमने हर एक चीज सीखा है कि आप डिजाइनिंग कैसे करते हो, आप मैगजीन को कैसे डिजाइन करोगे, आपको कलर कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, आप न्यूज रिपोर्ट कैसे लिखोगे, आपकी लेआउट कैसी होनी चाहिए, तो वो चीजें कंटिन्यू होते आ रही है। और अगर मैं थर्ड ईयर तक मैं अगर पूरा कंटिन्यू करूँ तो उसमें मैं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ वो चीजें भी कंटिन्यू करते चली जाऊंगी, तो वो मेरा एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा, तो उस चीज की वजह से मैं उसको परस्यू करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ उसमें। बाकी सर अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो सर मतलब मुझे जो भी चीजें मैं अच्छा देखती हूँ, अगर लोगों को करते देखती हूँ, मेरा होता है कि नहीं मुझे भी ये चीजें करनी है,
अगर मैं देखूं किसी को सिंगिंग, वाओ कितने अच्छे सिंगिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी होता है कि नहीं धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस करूं। गिटार बजाना भी मेरा एक है कि मुझे गिटार भी सीखना है, तो मैंने अभी उसको भी स्टार्ट किया है कि अभी प्राइमरी स्टेज में हूँ, बट मुझे है कि वो भी सीखना है। तो गाना तो गाना भी सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, गाना सर मैंने सीखा नहीं है, बट हाँ सब गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तो सर थोड़ा बहुत मैं गा लेती हूँ, मतलब अच्छा ठीक सीखा है, नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो फिर गा के सुनाओ हम लोगों को। सर सर ओके सर। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म, मैं ठहरी रही जमी चलने लगा। सर गुड गुड गुड, नहीं तुम तो अच्छा गाती हो, तो और थोड़ा सा रियाज करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो और अच्छा गाओगी। यस तुम हम लोग को वो कुछ डूडल आर्ट्स का कुछ दिखा रही थी, सो यू कैन शो इट नाउ। सर वो डूडल आर्ट वाला तो मैंने मतलब ऐसे कहीं कहीं कर दिया, तो वो चीजें नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ बट मंडाला आर्ट का मैंने किया है, तो वो चीजें मैं दिखा सकती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कलरिंग से किया था, कलर्ड मंडाला आर्ट, फिर मैंने स्केच वाला भी किया ब्लैक शेड से। अगर ये दिख रही है? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये चीजें मैंने करी है सर अभी, और बाकी इसमें भी और करना बाकी है, नहीं, अभी टाइम मिले तो। नहीं बहुत अमेजिंग है, इसको तो तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए और बनाना चाहिए चीजें। यस सर, थैंक यू सर। So moving on to Bunna, the same question to you as well. What will you tell us all about your passion, your hobby, your interest and all? सर स्क्रिप्टिंग करना, स्क्रिप्ट लिखना प्रेजेंट सिनारियो में जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो लिख लेता हूँ, एक उसका पॉइंट लिख लेता हूँ, बाद में नरेशन करता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो रेडियो है, लेकिन एक्सप्लोर सारी चीज कर रहा हूँ। तो लिंक्स बनाना, जैसे रेडियो में लिंक्स होते हैं कि चाय वाय सोनी सोनी हवा चले, मतलब लिंक्स वगैरह बनाना, तो उस तरीके की स्क्रिप्टिंग जो भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि हाँ इस पर बनानी है, तो मैं बाद में टाइम निकाल के नरेशन कर देता हूँ। अभी मैं परसों रेडियो मिर्ची 98.3 गया था, तो वहां पर गया था मैं, साइमा में मिली थी, रोची, श्रुति, पनक्रीत, सभी मिले थे, नवेद सर नहीं थे, नवेद सर घर पे होंगे, तो वहां पे गया था, तो मेरी बात हुई थी, तो वहां पे जाके मैंने काफी एक्सप्लोर करा कि क्या क्या होता है, फिर आप खुद को और बेहतर से बेहतर बनाना है मुझे। तो तुम वहां गए रेडियो मिर्ची, कैसे गए थे? विजिट करने के लिए गए थे? सर इंटरव्यू था। किस चीज का इंटरव्यू था? जॉब वीकली, मतलब वीकली जो शो होते हैं ना, संडे सैटरडे, उस चीज का, और काफी बच्चे आए थे, तीन दिन थे, एक दिन 75, एक दिन 75, एक दिन 75, और वैकेंसी 3 थी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी मार्केट के अंदर, कंपटीशन बहुत है, हम लोगों को ना बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ेगा। और मैं स्क्रिप्टिंग देसी फ्लेवर में लिखता हूँ, लेकिन लोकल फ्लेवर में, जैसे प्राइवेट रेडियोज का अलग होता है, आकाशवाणी अलग होता है। प्राइवेट रेडियो क्या होता है कि उनको एकदम देसी फ्लेवर चाहिए, एकदम चीयरफुल बंदा, हंसमुख, बिल्कुल ही बिंदास, फर्स्ट क्लास। मेरे को असाइनमेंट मिला, मेरे काम मिला था, क्योंकि जब मेरे पास जीमेल आया था तो उन्होंने मेरे को जीमेल भेजा था, तो उसमें काफी चीजें मेंशन थी। मेरे को 6 वीडियोस बनानी थी और 12 लिंक्स बनाने थे। तो मोहित, मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में तो आ गया था कि क्या क्या होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लिंक्स का मतलब क्या होता है। जो मैं बनाता हूँ वही लिंक्स होते हैं। फिर मैंने मोहित सर से कंफर्म करा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होगा भाई, ऐसे ऐसे करो। तो मैं वहां गया, तैयारी करी। 15 तारीख को मेरे पास मेल आया था, 17 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, और मेरे पास 2 दिन का टाइम था, और मेरे को 2 दिन में ये सारे काम करने थे, 6 वीडियोस, 12 लिंक्स, एडिटिंग वगैरह सब। मैं परेशान हो गया था, तो मेरे को करना ही था क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी इतनी बड़ी। तो मैंने करा एक दिन में स्क्रिप्ट लिखी सारी, अगले दिन रिकॉर्डिंग करी रात के 5 बजे, सुबह 5 बजे, फिर 9 बजे इंटरव्यू देने निकल गया, क्योंकि 11 से 3 बजे का टाइम था। तो काफी, उन्होंने 1 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट करा था, तो इंटरव्यू स्टार्ट करने के बाद मेरा 3:30 बजे नंबर आया था। काफी बच्चे थे, मतलब मेरे से भी ऊपर जो सारे ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, साउथ एक्स वगैरह के बड़े बड़े कॉलेज के, जो डबिंग भी करते थे तर्किश वगैरह की, वो सब थे। मैं सोच रहा मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, और ये बंदे कहाँ हैं। लेकिन हाँ, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा कि मार्केट के अंदर वाकई होता क्या है।
नहीं, ये वो experience- एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, और तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिला है वो तुम अपने क्लासमेट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। उससे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि वन शुड नॉट टेक द थिंग्स इजी। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक ये इंपॉर्टेंट बात। एंड सेकेंडली, सिलेक्शन और नो सिलेक्शन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि या तो आप तैयारी नहीं करते, देन यू फेल व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री, ट्राइंग टू जॉइन द इंडस्ट्री। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको कभी भी इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो you at least got both the things, so you should tell about your experience to your classmates, right? And then जब वहां पे गए तो क्या सारे आरजे से किसी से तुम्हारी 1-to-1 कोई बातचीत हुई? साइमा मैम। अच्छा, साइमा मैम से क्या बात हुई? उन्होंने बताया नहीं? उनको तो लास्ट ईयर हमने डीएमई मीडिया स्कूल में conferred that गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड on her. या मैंने साइमा में मेरे को मिली थी, तो मैंने बात करी अपनी जो अपनी लैंग्वेज है उर्दू में, तो उर्दू मैंने उससे बात करी। तो मैम कह रही तो हो गया, किस काम से आए थे आप यहाँ पे? मैम इंटरव्यू था। बोला हो गया, मस्त गया? मैंने हाँ मैम अच्छा गया, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या हो। बोलो ठीक है, बढ़िया है। फिर बाद में बोलते हैं, फिर बाद में मैम को बताया कि मैम अबुल फजल में रहता हूँ हरी कोठी के पास। तो बोली मैम ने बोला मैं हमारे कॉलेज में भी आए हो। उन्होंने ये नहीं बताया मैं डीएमई से हूँ। तो मैं वो बोलती हाँ, तो बोलती है जामिया में। मैंने जामिया में नहीं, जामिया में तो मैं 2019 में था, अभी मैं डीएमई में हूँ। खालसा यूनिवर्सिटी आईपीओ का कैंपस है, सेक्टर 62 नोएडा में, आईबीएम के पास। आप उसमें आए हो कुछ साल पहले? बोला हाँ गई थी मैं कुछ साल पहले। तो उन्होंने बताया मेरे को, तो फिर अच्छा लगा। फिर बाद में बोली अच्छा गया ना इंटरव्यू? मैम हाँ देखते हैं इंशाल्लाह क्या हो। बाकी फिर वो बिजी थी, काफी कुछ कैबिन में बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो मैं वहां से चला गया। अभी तुमने अभी बातचीत में एक चीज कही कि तुमने अपनी लैंग्वेज में बात की। अपनी लैंग्वेज कौन सी है तुम्हारी? सर मतलब जैसे कि रहनुमाई गाइडेंस मुझे चाहिए, जैसे रहनुमाई। अभी तुमने कहा ना अपनी लैंग्वेज उर्दू में बात की, यू सेड दिस। यस सर, जैसे मुझे मैम रहनुमाई चाहिए आपसे, गाइडेंस चाहिए। तुमने कहा कि उर्दू में बात की, इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर उर्दू ही मैंने मैम बोले तो उर्दू में बात करी, कैसे रहनुमाई चाहिए आपसे मुझे कि ये वो, क्योंकि मैम की प्रोनाउंसिएशन से ही मैंने काफी अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही है। तो उस वे में ही उनसे मैंने काफी कुछ सीखा, उनकी वीडियोस से मैंने। अच्छा, तो चलो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, और लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उर्दू एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से भारतीय भाषा है। और उर्दू एक ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान की भाषा है। वो किसी धर्म या जाति या संप्रदाय की भाषा नहीं है, ठीक है? और उर्दू का जो ओरिजिन है वो उत्तर प्रदेश से है। वो कोई पंजाब, कश्मीर या कहीं की भाषा नहीं है ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है? और उर्दू के जितने बड़े साहित्यकार हुए हैं, जितने बड़े नाम हुए हैं, जिन्होंने उर्दू को आगे बढ़ाया, वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। ठीक है, हिंदी और उर्दू मिक्सचर है। मिक्सचर नहीं है, उर्दू अलग भाषा है। मिक्सचर तो ठीक है, सारी भाषाओं का मिक्सचर है, उर्दू हिंदी का ही मिक्सचर नहीं है। हम जो भी भाषा बोलते हैं उसमें दुनिया की सारी भाषाओं के शब्द हैं। जो मैं और तुम बात कर रहे हैं इसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत है, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, सारी भाषाओं के शब्द मिला के हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अभी भी सारी भाषाएं मिली हुई हैं इसमें जो हम बात कर रहे हैं। तो सारी भाषाएं एक हैं, बट देन हर भाषा का अपना अलग अस्तित्व है। और कोई भी भाषा किसी एक रीजन की होती है, किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन की होती है, किसी धर्म या संप्रदाय की भाषा नहीं होती, ठीक है? तो ये अपनी जानकारी सुधार लो। Okay, so now we move on to the last segment of the program, and I would ask each one of you to say to make the final expression or to say the final word, whatever you want to say in this program in brief. Aradhana. Sir, I started my journey with DME in 2016. मैं लॉ में थी, मैंने 2 साल लॉ करा। मेरे को नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना गट्स होगा कभी कि मैं स्विच करूंगी करियर। मैंने फाइनली कहा कि लॉ नहीं होगा भाई, स्विच करो।
फॉर्चुनेटली उस टाइम रविकांत सर ने मेरे को आइडिया दिया था कि तुम डीएमई में आओ मास कॉम करने के लिए, व्हाई यू चेंजिंग द कॉलेज, फिर बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, चेंज करो ये, तुम डीएमई में करो। मैंने एंट्रेंस दिया, डीएमई में करा मैंने। आई वॉज वेरी हैप्पी। जब फर्स्ट डे आई मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी नहीं कि ओ कॉलेज आ रही है, लाइक हाँ मैं आती थी 2 साल वही आ रही हूँ, पर स्टूडेंट्स को देख के था काफी रिलैक्स्ड बच्चे, मतलब आई वाज लाइक इवन तो मेरे को पता है मेरे से छोटे हैं बट दे नेवर मेड मी फील लाइक दीदी है ये हमारी, वे लाइक ऑल वन। तो 5 साल बाद मैं निकली हूँ इस साल डीएमई से, इवन दो लास्ट के 2 साल मेरे ऑनलाइन गए हैं। बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज हुई तुम्हारे साथ कि तुमने जो 2 साल लॉ की पढ़ाई की वो तुम्हारे जिंदगी में हमेशा काम आएगी, क्योंकि जर्नलिज्म और मीडिया की पढ़ाई इस तरह की है कि उसमें लॉ का जो कंपोनेंट है वो बड़ा मेजर कंपोनेंट है। तो जो तुमने पढ़ाई की वो तुम्हारी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, वो काम आएगी और मैं रिग्रेट भी नहीं करती बिल्कुल। वो अच्छी बात है कि बहुत मेरा डीएमई जर्नी 5 साल का बहुत अच्छा था, विदाउट एनी रिग्रेट। जब लॉ ज्वाइन किया था पेरेंट्स का फोर्स था थोड़ा सा कि सोसाइटी ओरिएंटेड करियर चूज करो, इसलिए गई मैं। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। नहीं हुआ, मैंने मम्मी को बोला, मम्मा ने कहा देख ले तेरे को करना है आगे। आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने डीएमई ज्वाइन करा मास कॉम के लिए। टीचर्स काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी, मनमीत मैम, पारुल मैम, तो मतलब अभी भी मेरी बात होती है मैम से। मेरा जब रिजल्ट आता है मैं उन्हें मैसेज करती हूँ याद से कि मैम ये रिजल्ट आया, अभी भी टच में। तो बहुत अच्छा जर्नी था। बाकी मैं अपने जूनियर्स को एक चीज कहूंगी यार, जहाँ पे तुम हो ना अभी, तुम 1 साल बाद 2 साल बाद जब निकलोगे ना, तुम ये चीज पक्का मिस करोगे। 5 साल के एक्सपीरियंस के बता रही हूँ, तुम्हें बहुत मिस करोगे। एक ऐसा एज है, तुम्हें टीचर्स पे गुस्सा आएगा कि हमें ये क्यों बता रहे हैं करने को, पेरेंट्स पे गुस्सा आएगा, लेकिन कल तुम सोचोगे काश नहीं बैठे होते, दैट वाज मच बेटर। एटलीस्ट खुद के डिसीजंस लेने नहीं पड़ते। अभी इट्स लाइक आई हैव टू थिंक कि मैं ये करूँ वो करूँ। कॉलेज में ऐसा था कि हमें बताया जा रहा है कि ये करो वो करो। तो अच्छी बात है, जितने जूनियर्स हैं वो सुन रहे हैं तो कुछ प्रेरणा लेंगे आराधना से। मूविंग ऑन टू मेधा, व्हाट वुड यू लाइक टू से द फाइनल स्टेटमेंट? सर सबसे पहले तो मैं ये सोच रही थी जब ये फेस टू फेस आया तब मैं ये सोच रही थी कि सारे कॉलेज में ऐसा होता है क्या कि फेस टू फेस मतलब डीन सर इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबको जानो। और मतलब स्पेशली टीचर के साथ तो हम बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, बट डीन सर के साथ नहीं होते हैं। वो थोड़ा हार्ड लगता है कि आप उनसे बात करो, उनसे अप्रोच करो चीजों के लिए। तो मेरा फर्स्ट ईयर तो ऐसा ही गया कि मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी लोगों से। पढ़ाई करती थी, सुबह गई कॉलेज, पढ़ाई किया, सारे लेक्चर्स लिए, 7 के 7 लेक्चर्स लेके डायरेक्ट घर आ जाती थी। तो वो चीजें नहीं होती थी जितना मैंने ऑनलाइन में किया एक्सप्लोर, बिकॉज टीचर भी मोर केयरिंग हो गए थे कि आप कर रहे हो नहीं, मेधा आप क्लास में हो या नहीं, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैसेज करके असाइनमेंट बताना और मैम से पूछते रहना। तो वो चीजें बहुत इंटरेक्टिंग थी। और ऊपर मैंने बस पता लगाने का कोशिश किया कि जैसे डीन, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हारे डीन सर तुम्हें जानते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे मतलब ऐसा कुछ सेशन तुम्हारे यहाँ भी होता है? तो उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो बेसिक क्लासेस होती है बस। तो फिर ये सेशन मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये इंटरेक्टिव है। आप यहाँ पे अब मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद मैं आपसे सर और कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट ऐसा होता है कि अगर आप जिसको पहचानो उससे, इंट्रो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ थिंग है कि आप जिनको पहचानो उनसे आप ज्यादा बातें कर सकते हो, अदरवाइज मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ जिनको नहीं जानती। हाँ, तो सर मुझे लगता तुम नहीं करती, लेकिन मैं तो क्लास में तुमसे बात करता हूँ और तुम्हारे ऊपर डिपेंड भी करता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Okay, so Munna, what will you say your final expression in this program? यही सर, मेरा दीन ने जो कहा कि आपके साथ इंटरेक्शन, मतलब एक होता ना डीन के साथ हैं, मतलब उनके साथ इंटरेक्शन टीचर्स के साथ तो हमारा रहता ही है, और आपके साथ भी आप भी करते हैं। आप फेस टू फेस इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करा तो काफी अच्छा लगता है। एक खुली मतलब एक बात करने का मौका मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म से।
Okay, so then we move on towards the closer of this program. It was indeed a very interesting session, very interactive session, and I also enjoyed because whenever I'm conducting this kind of program, it's two-way. In communication, it's always two-way. It cannot happen from just one side. And since I enjoyed that is why I'm continuing with this program. And the important thing which finally emerged from today's episode is that everybody is very, very positive towards life, towards career, because that's the essence in life. If you are positive, then obviously you will move forward and nothing can stop you in your journey. Thank you all, Aradhna, Medha, and Munna for being with me in this program. Thank you all.